Hello and welcome, my dear students. Today we'll be discussing about the epidemiology. The term epidemiology itself is a very huge to discuss, so we'll be starting with a brief discussion as a part of introduction. Myself, Dr. Mike, assistant professor from the Department of Community Medicine, Srinath Medical College, Indore. So let's begin. We're talking about the history part. Basically, what is the history about the epidemiology? The Greek physician Hippocrates is usually said to be a father of epidemiology, the first person to have examined the relationship between occurrence of disease, you need to understand this word, occurrence of disease and their environmental influences, coined the term epidemic and endemic. दो वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज जॉट इट इज़ फॉर योर बेस्ट. Now we have John Grant. Sir John Grant, an amateur scientist, published natural and political observations upon the bills of mortality in 1662. In it, he used analysis of mortality rolls in London before the Great Plague to present one of the first live tables and report time trends of any disease. किसी भी डिजीज़ का जो टाइम ट्रेंड है उसको लाइव टेबल एनालिसिस करके इन्होंने बनाया था. Okay, so these two names you need to remember. Hippocrates, the first Greek physician, the father of epidemiology. उन्होंने क्या देखा था? Occurrence of any disease and the environmental influences. And term coin क्या था? Epidemic and endemic. जॉन ग्रांट क्या करते हैं भैया? एक आर्मेचर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लाइफ टेबल एनालिसिस किया था और रिपोर्ट तैयार किया था अबाउट द ग्रेट प्लेग आफ्टर द mortality rates over the Great Plagues. Okay. Now, mention is made of Epidemiological Society in London, 1850, under the presidency of Earl of Shaftesbury, who is the main concern was investigation of infections disease. जो infectious disease है उसका main concern था उनका. W.H. Frost, the first professor of epidemiology in the US. Frost का नाम इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि he was the first professor of epidemiology. Okay. Major Greenwood, the first professor of epidemiology and medical statistics in University of London. Basically stats का उत्पाद वहीं से हुआ था, इन्वेंशन वहीं से हुआ था कि हम किसी भी स्टडी को कैसे फॉलो अप करते हैं. Now we have the very prominent name जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, डॉक्टर जॉन स्नो. Okay. Who is a famous for the suppression of an 1854 कॉलेरा आउटब्रेक. जो कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था. लंदन गोल्डन स्क्वायर पे गोल्डन स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कैसे आउटब्रेक हुआ है. द आउटब्रेक वाज एज अ पब्लिक वाटर पंप एंड हैड द हैंडल रिमूव देयर बाय एंडिंग द आउटब्रेक. एक ही कॉमन सोर्स था पानी का जहाँ से जो इन्फेक्शन फैल रहा था लोगों में, जो दिख रहा था, जो इन्होंने स्टडी आउट किया था कि पॉइंट सोर्स क्या है, कहाँ से इन्फेक्शन रेज अप हो रहा है, एंड जिस कारण से कॉलेरा आउटब्रेक बराबर बना हुआ है. जब कॉलेरा आउटब्रेक हो रहा था तो फिर पॉपुलेशन का भी डिक्लाइन हो रहा था, हेल्थ सेक्टर बहुत ही संकट में आ गए थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट ट्रेंड्स. बेसिकली इट प्रेजेंटली डिस्कस ओवर द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज दैट इंक्लूड नॉट ओनली एपिडेमिक्स बट ऑल्सो क्या करता है भैया, एंडेमिक डिजीजेस देखते हैं. एंडेमिक डिजीजेस मोर रिसेंटली में क्या है, क्रोनिक डिजीजेस, एक्सीडेंट्स एंड मेंटल हेल्थ. Most importantly, the outcome of the preventive and therapeutic measures insisted that the study in terms of benefit of the community derives from the measures, the risk involved, the cost to health services in terms of men, money and material. 3M जो आपको हमेशा याद रखना होता है, man, money and material. Okay. So these are the current trends which you need to understand when we are talking about the epidemiology. The current interest of medical science in epidemiology has given rise to the newer offshoots. क्या है भैया ये जो newer offshoots हैं? बायोफिजियोलॉजी और डिजीज़ एरिया हमने दो भाग में बांट रखा है, बायोफिजियोलॉजी और डिजीज़ एरिया, और दूसरा है बायोमेथोलॉजिकल अप्रोच. जो मेथड है आपका अप्रोच करने का उसके ऊपर हमने बांट रखा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी जो फिजियोलॉजी के अंदर आ रहा है, क्रोनिक डिजीज, कैंसर एपिडेमियोलॉजी, मलेरिया, न्यूरो एपिडेमियोलॉजी, पीडियाट्रिक, dental, renal, respiratory, injury, veterinary
एंड साइकेट्रिक। ये बेसिकली जो फिजिकल फिनोमेनन है आपके वो कवर अप कर रहा है। एंड बाय मेथोडोलॉजिकल में क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल, जेनेटिक, मॉलिक्यूलर, न्यूट्रिशनल, सीरोलॉजिकल, साइकोसोशल, बायोस्टैट्स एंड मेटा एनालिसिस, pharmacoepidemiology, life course epidemiology, and infection control epidemiology for the hospitals. Okay, now we are talking about the prime thing, that is the definition of epidemiology. हर कोई ने अलग अलग अपना डेफिनेशन दिया है, बट जो मेन परफेक्ट डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। सो उससे पहले जो डिस्कस किए गए हैं डेफिनेशन उसको हम लोग देख लेते हैं। Previously, the epidemiology has been defined as the branch of medical science which treats of epidemics. ये सर पार्किन ने दिया था 1873 में। ओके, नाउ हर का अलग अलग डायमेंशन था सोचने का, हर का अलग अलग तरीका था देखने का। तो जिन्होंने जैसे जैसे बताया है हम उसके बारे में बस एक आउटलाइन देख रहे हैं। ओके, द साइंस ऑफ मास फिनोमेना ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये किसने बताया था? फ्रॉस्ट ने 1927 में। द स्टडी ऑफ डिजीज, एनी डिजीज एज अ मास फिनोमेनन, वो हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं, ये बताया गया था ग्रीनवुड द्वारा। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन मैन, मैकमोहन एंड पग ने बताया था 1960 में। तो यू कैन सी द इवोल्यूशन, कैसे कैसे हमारा डेफिनेशन इवॉल्व हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ये जो वेरियस पार्ट हम लोग डेफिनेशन का देखते हैं, जो हम लोग करते आए हैं, जो समझते आए हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि भैया हम ओरिजिनलिटी पे कैसे डिराइव कर रहे हैं। ओके, सो द डेफिनेशन एक्सेप्ट टुडे वाज गिवन इन 1988 बाय जॉन एम लास्ट हैज़ द लास्ट स्टेटमेंट ऑल्सो। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कलर चेंज जो किया गया है स्लाइड में, आप प्लीज़ उस पर गौर फरमाएं, जो वर्ड याद रखना है। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट, कहाँ पे? स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वंस अगेन, दूसरा डिटर्मिनेंट, किसके लिए रिलेटेड में बात कर रहे हैं? हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं या इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, जो आपका स्पेसिफिक पॉपुलेशन उसमें बात कर रहे हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, इट गिव्स यू द रिलेटिवली the outcome of epidemiology. Okay, now we're talking about the various aspect what we have read till now. Three more important thing, the important component of definition of epidemiology में क्या क्या आता है जो हम देखेंगे। So basically we are talking about the three important component of the definition of epidemiology, जो कि definition based बना है हमारा। Basically discussing about the disease frequency, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। तीन चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट, जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी आपसे डेफिनेशन कोई पूछता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ डिजीज फ्रीक्वेंसी? होता क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कितना कोई फ्रीक्वेंट हो रहा है। तो कोई भी डिजीज़ कितनी फ्रीक्वेंट है आपके सोसाइटी में, आपके आसपास के सराउंडिंग में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। So, inherent in the definition of epidemiology is the measurement of frequency of disease, disability of death, and summarizing this information in form of rates and ratio. तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो किस में एक्सप्रेस होता है? रेट्स एंड रेशियोज में एक्सप्रेस होता है। इट इज़ द क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स विच इज़ द बेसिक टूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को हम लोग नापने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है बायोस्टैट्स, जो कि बेसिक टूल है एपिडेमियोलॉजी का। ओके, नाउ दीज रेट्स आर एसेंशियल फॉर, किस लिए हैं ये रेट? फॉर द मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, जो हमने डेफिनेशन में बात किया है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे भी अभी, ठीक है। एंड स्टेट्स विद इन द कम्युनिटी लाइज, वेरिएबल सच एज बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाइट, weight, etc. can also be measured here. Comparing disease frequency in different population or subgroups of the same population in the relation to suspected causal factors provides clue to the etiology. जो भी मेन फैक्टर है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं डिजीज फ्रिक्वेंसी को, डिफरेंट पॉपुलेशन में देख रहे हैं, सब ग्रुप्स में देख रहे हैं, वो क्या मिल रहा है हमें आउटपुट। ओके, सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज जो हम देख रहे हैं, इट्स अ distribution of disease that occurs in a pattern
in a community, and these patterns may lead to the generation of hypothesis about causative or risk factor. जो भी रिस्क फैक्टर है, जो भी कॉजेटिव पैटर्न है, जो हम देखते आ रहे हैं फ्रॉम टाइम बिंग। डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम लोग फ्रॉम एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखते हैं उसको, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के साथ देखते हैं। 3 कॉमन फैक्टर है जो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ओके। सो फॉर टाइम बिंग, टाइम, प्लेस एंड पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। टाइम में क्या आता है अपने पास, ईयर आता है, सीजन्स आते हैं, मंथ्स आते हैं, वीक, डे, आवर ऑफ ऑनसेट कब से हुआ, ड्यूरेशन, ओके। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कोई भी डिजीज़ की ऑनसेट होती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, इट टेक्स स्टिपुलेटेड टाइम टू ओवरकम इट। पहला आप जब लिया आपने और जब आपका ऑनसेट ऑफ डिजीज़ दिखता है तो इट टेक्स सेवरल टाइम। तो हम बात करें यदि उल्टा रिग्रेसिव मैनर में, जब आपका ड्यूरेशन था, किस आवर से ऑनसेट से चालू हुआ, कितने दिन कितने हफ्ते से है आपको खांसी, सपोज एग्जांपल लेते हैं, कितने महीने से चल रही है, सीजनल है, ऑफ सीजनल है, किस ईयर में हो रहा है, ओके। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द प्लेस, दैट इज क्लाइमेटिक जोन्स, कंट्री, रीजन, अर्बन, रूरल, कम्युनिटी, टाउन, सिटीज, इंस्टीट्यूशन। कहाँ हुआ आपको, बेसिकली मेन चीज़ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, किस एरिया में हुआ, किस क्लाइमेटिक जोन में हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स टॉकिंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, बेसिकली आपके पेशेंट का एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, बिहेवियर, ये सारा चीज़ मैटर करता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। फैमिली साइज मैटर करती है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड पर्सनल हैबिट्स। So these are the various things which you need to understand when we are talking about the distribution of disease. This aspect of epidemiology is called descriptive epidemiology. क्योंकि आपने देखा होगा, जस्ट फॉर अ रिवाइंड पर्पस, टाइम, प्लेस एंड पर्सन में हमने डिवाइड किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को, जो कि ईयर, जोन्स एंड आपके एज, सेक्स रिलेटेड मैटर एंड पर्सनल हैबिट पे भी बात करता है। सो ये बहुत ही डिस्क्राइब फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट। जो हमने 3 वर्ड बात किया था, ये वही वाली बात है। पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज आर आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग द एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। दिस एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज नोन एज एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। In the recent years, analytical studies have contributed to greater understanding of determinants of chronic diseases. जो भी डिजीज हैं, सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, जो डिटर्मिनेंट है आपके स्टडी का, ये डिसाइड करता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, राइट, ये सब जानते हैं। मगर क्या हर एक मच्छर काटने से मलेरिया होता है? किसी खास के काटने से मलेरिया होता है? वो कौन सा मच्छर है जिनके काटने से मलेरिया होता है? सो दीज आर द टेस्टिंग एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, ठीक है। तो ऐसे स्टडीज को कहते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, कि एनालिटिक्स पे काम करता है। आपके सराउंडिंग में कौन से फैक्टर हैं जो आपको इवॉल्व कर रहे हैं मलेरिया के लिए? आर द प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर सच एज रिसाइडिंग ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग एरियाज हैं आपके पास, तो उसको हैम्पर कर रहे हैं आपके नेचुरल हेल्थ को, तो वो हम क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी? क्या एम है? हाउ डू यू वर्क ऑन विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी? द एम इज टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड दिख रहा है हेल्थ का और डिजीज़ का, उसके ऊपर हम काम करते हैं। टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज रिस्क फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। जो डिजीज़ का पैथोजेनेसिस है वहाँ पे हम काम कर रहा है, कैसा कर रहा है वो देखते हैं। टू प्रोवाइड डेटा एसेंशियल टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। एग्जाम्पल याद रखने के लिए PIE, पाई, planning, implementation and evaluation of services for prevention, control and treatment of disease, and to setting of priorities among those services. Okay, now we are talking about the basic aim. ये आपको समझ में आना चाहिए, जो आपका एम क्या है स्टडी का, क्या मिल रहा है आपको स्टडी से। Whose side are you on? On the healthier side or on the worse side? For healthy life, for life. Okay. Now we are talking about the various aspects which you need to understand. Okay, so
ओवरऑल हम कहाँ पहुँचते हैं, हम कहाँ लैंड अप करते हैं? वी आर लैंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के डिफरेंट क्लास कौन कौन से हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा है डिस्क्रिप्टिव, जो हमने पहले बात किया आपसे, एनालिटिकल, जो कि एनालिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, जिसमें कि केस कंट्रोल होता है एंड कोहॉर्ट होता है। नाउ डिस्क्रिप्टिव तो आपने देख ही लिया था, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के ऊपर हम बात कर रहे थे। एनालिटिक्स में हम हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर रहे थे कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। ओके, नाउ इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट कि किसी भी वैक्सीन को, किसी भी ट्रायल मोड में काम करने वाले चीज़ को हम कैसे स्टडी आउट करेंगे, कैसे उसको रूल आउट करेंगे। ओके, सो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन का कंपैरिजन हम देखें तो क्या है? इन क्लिनिकल मेडिसिन द यूनिट ऑफ स्टडी इज केस और केसेस। इन एपिडेमियोलॉजी द यूनिट ऑफ स्टडी इज डिफाइंड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एट रिस्क। या तो आपके पास क्लिनिकल मेडिसिन में एक केस होगा या ढेर सारे केसेस होंगे एक ही डिजीज़ के या अलग अलग डिजीज़ के, बट इन एपिडेमियोलॉजी इट इज़ अ डिफाइंड पॉपुलेशन, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करेंगे, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करेंगे, पर्टिकुलर ट्राइब होगा, एंड दोज पॉपुलेशन विच आर एट रिस्क इन दैट पॉपुलेशन एरिया। In clinical medicine, a physician is concerned with the individual patient who is diseased. आपके पास वही पेशेंट आएंगे जिसको बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया होगा। एपिडेमियोलॉजी के कंसर्न में देखेंगे तो क्या दिखता है? द डिजीज पैटर्न इन द एंटायर पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द बोथ द सिक एंड द हेल्दी पीपल, ये सब इनके एरिया में आते हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल मेडिसिन में क्या होता है? द फिजिशियन सीक्स द डायग्नोसिस सो दैट ही कैन derive prognosis and prescribe the specific treatment. एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। It uses the relevant data to identify the particular source of infection in the community, its mode of spread and the risk factor, so as to determine the future trend and recommended specific control measures. अब आपके पास यहाँ पे एक डॉक्टर, एक पेशेंट, यहाँ पे एक एपिडेमियोलॉजिस्ट और पूरा गांव पेशेंट, और उसमें सिक भी हो गए और जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी आ गए। ठीक है, आर यू गेटिंग पार्ट? सो वन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैज़ टू कवर ऑल दो सिनेरियो वेयर द पीपल आर लिविंग, हाउ द पीपल आर लिविंग एंड हाउ दे आर डूइंग, एंड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स जो कि बजट बाय भी हो, सबके लिए इफेक्टिव हो, ट्रेंडी भी हो और हेल्दी आउटकम दे। ओके, क्लिनिकल मेडिसिन में जब पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर बाहर निकलता है अपने चैम्बर से, वो देखता है कम्युनिटी में, वो फाइंड आउट करता है उस पर्सन्स को, डिजीज़ को, जिससे कि सब कोई सफ़र हो रहे हैं, जो सस्पेक्टेड केस और कैजुअल फैक्टर हो सकते हैं आपके क्वेश्चनेबल पार्ट में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इज ईजिली परसीव्ड बाय सच टेक्निक्स एज क्लिनिकल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन including post-mortem reports. In contrast, the subject matter of the epidemiology is conceptual, can only be symbolized in the form of tables and graph. आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसको एक अच्छा लैब में भेज के आप टेस्ट कराते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो बराबर से, नहीं होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर भी आप व्यूज़ देते हो। बट इसी के उलट अपन बात करें एपिडेमियोलॉजी के बाद में, इट इज़ अ कंसेप्चुअल पार्ट, कंसेप्ट बेस्ड पार्ट। वहाँ पे आपको सिंबलाइज करना पड़ता है आपके ओन टेबल एंड ग्राफ से क्या आपका आउटकम दिख रहा है। वी विल बी नीडिंग द बायोस्टैट्स एज अ बेसिक पार्ट। ओके, तो होपफुली आई थिंक आपको क्लिनिकल मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजी या फिर कम्युनिटी मेडिसिन में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। हाउएवर क्लिनिकल मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजी आर नॉट एंटागोनिस्ट, काम दोनों एक ही करते हैं, मगर वो एक स्पेसिफिक पे काम करता है, एक लार्ज एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बात करता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की हम बात करेंगे तो पहला अप्रोच क्या होता है आपका? आस्क क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन। इसने क्या बोला, इसने क्या बताया, इस एरिया में क्या मिला, उस एरिया में क्या मिला, तो आपको ये देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, हाउ डू दे वर्क? बाय प्रूविंग और आस्किंग द क्वेश्चंस। ओके, तो आस्किंग क्वेश्चन इज द मेन सिनेरियो विच इज द हाईलाइट पॉइंट ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट. Epidemiology has been defined as the means of asking questions and getting answers that lead to the future questions. The following questions could be asked such as what, how, where, when, who, why.
आर गेटिंग पार्ट? प्रॉब्लम क्या था कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन अफेक्टेड हुए एंड व्हाई डिड इट हैपन. ओके, now related to the health action we are discussing about the few points. What can be done to reduce the problem? क्या करें कि हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए. हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर? अभी हुआ है कोरोना जैसे, तो हम आगे कोरोना से कैसे बच सकते हैं. व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द कम्युनिटी, बाय हेल्थ सर्विसेज एंड बाय अदर सेक्टर्स, वेयर एंड फॉर whom they are to be carried out, what resources should be required and how are the activity to be organized, what difficulties may arise and how might they be overcome. जब कोरोना चालू हुआ तो यही क्वेश्चन सबसे प्रोमिनेंट था हमारा. What difficulties may arise and how might they be overcome. Okay, so making comparison is a very easy thing for a particular individual. The comparison between the two or more groups, that is the study and the control group. The first consideration is to ensure comparability. Both the groups must have similar characteristics like age, sex composition. The data should be accurate and gathered in a uniform way. ऐसा नहीं कि haphazardly आपने कभी इससे पूछ लिया कभी उससे पूछ लिया. So you need to make precise and make with the similar characteristics when you're talking about a comparison. Okay, बहुत सारे मेथड होते हैं मगर उनमें से जो मेन हम देखते हैं मैचिंग, randomization and standardization. These are three main things which we need to understand. Okay, now basic measurement and epidemiology हम देखेंगे तो क्या बात करता है. It basically focuses upon the many other things on the measurement of mortality and morbidity. क्लियर कट सिनेरियो में हम बात करेंगे. इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड, इफ डेफिनेशन में देखें तो ऑफ व्हाट इज़ टू बी मेजर्ड, तो हम डिजीज़ को मेजर करते हैं एग्जांपल में. एंड द क्राइटेरिया बाय विच इट इज़ टू बी मेजर्ड, किस क्राइटेरिया से आप मेजर कर रहे हैं. एंड द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड. इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट टू मिनिमाइज एरर इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. कौन सा डेटा है, कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है. ठीक है. The measurement include basically the measurement of mortality, morbidity, disability, natality, okay, presence, absence और distribution of the characteristic of disease है कि नहीं है उसमें. मेडिकल नीड्स के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, कौन सा एरिया प्रेवलेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. तो आती है बात कैसे देखते हैं. व्हाट आर द टूल्स. बेसिकली टूल्स क्या है आपके पास. रेट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसके ऊपर हम बात करते हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं रेट क्या होता है. इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड अकरेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट गिवन बाय द फॉर्मूला. डेथ रेट इज क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर बाय मीड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000. मैक्सिमम जगह 1000 से इंटू होता है, ये ध्यान रखें आप. Now we are talking about the crude rate, specific rate and standardized rate. 3 टाइप के रेट्स होते हैं. क्रूड रेट जो स्पेसिफिक दिख रहा है, स्पेसिफिक रेट किसी खास डिजीज के लिए हम बात करेंगे. एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेट जैसे कि एज, सेक्स, स्टैंडर्डाइज्ड रेट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं. Now we are talking about the ratio. We will take a small glimpse over this also. It's expressed in relation in size between the two random quantities and numerator is not component of the denominator. The numerator and the denominator may involve at the interval of time or maybe instantaneously or time. For example में हम बात करें the number of children with the scabies at a certain time by the number of children with malnutrition at a certain time. मतलब आपके पास एक न्यूमिनेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना जरूरी है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेक्स रेशियो, डॉक्टर पॉपुलेशन, जैसे कि एक डॉक्टर पे जैसे हम बात कर लेते हैं 100 पेशेंट होना चाहिए. अभी है कितना, क्या नहीं है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है अपने इंडिया में, तो बर्डन बहुत बढ़ता चला जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन पार्ट. द रेशियो विच इंक्लूड्स रिलेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल, दैट इज द न्यूमरेटर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज. परसेंटेज में हम लोग बात करते हैं, ये याद रखेंगे. P for proportion, P for percentage. The number of children with scabies at certain time by total number of children and in a village at the same time. अब यहाँ पे हम नॉर्मल बच्चे भी ले रहे हैं अकाउंट में, और हम खास कर बात करें स्केबीज के बारे में, तो उसको इंटू करते हैं 100 फॉर द परसेंटाइल पार्ट. ओके. नाउ द कंसेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा. द न्यूमरेटर ऑलवेज रेफर टू द स्पेसिफिक इवेंट, सिकनेस, बर्थ, डेथ, ओके, एपिसोड्स ऑफ सिकनेस, वो आपका हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा.
It is a component of a denominator while calculating the proportion, but not in a ratio. The numerator may be variate होगा and circumstances होगा, जो दो पार्ट पे निर्भर करता है. Now these are the various aspects what we are talking about. Okay, related to a total event हम बात करें. In some instances the denominator may be related to the total event. जो आपका डिनोमिनेटर है वो टोटल इवेंट के ऊपर भी काम कर सकता है. यदि आपके पास केस फर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर 1000 व्हीकल का हम एक पार्ट ले सकते हैं जिसमें हम काम करेंगे. ओके, सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड टुडे. होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी. इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट. फ्रॉम द नेक्स्ट वी विल बी गोइंग ग्रॉसली डीपली. सो प्लीज़ डू रिवाइज ऑल दोज एस्पेक्ट व्हाट यू हैव डिस्कस्ड हियर. मेन आपको देखना होगा इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल में क्या डिफरेंस आते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और जनरल मेडिसिन में क्या डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लाइबिलिटी रहता है. होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी. टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.